Hello everyone. In this video, we will discuss the historical background of Indian contract law and the nature of contract. The law of contract is very important and interesting subject because every day, knowingly unknowingly, we enter into a numerous contract. For example, आप शॉप में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. आपका सेल फोन ख़राब हो गया, आप रिपेयर के लिए दिया, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ. सो लेट वी डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. The contract law in India codified in the year 1872 with the enactment of the Indian Contract Act. So the prior to the enactment of this act, the law governing the contractual relations were dealt by the personal contract law. जब भी कोई शूट फाइल किया जाता था कोर्ट में, अगर पार्टीज जो है, अगर बोथ द पार्टीज हिंदूज है तो हिंदूज पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता था. अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम्स है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता था. तो कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट. तो दिस सिस्टम वाज continued even after the establishment of High Court in the presidency town of Calcutta, Bombay, Madras in the year 1862. The Third Indian Law Commission has submitted its report in 1861. In its report, the Commission has recommended for the enactment of consolidated law on the subject which is suitable to the Indian situations. On the basis of the recommendation of the Third Indian Law Commission, the Indian Contract Bill was introduced in the Indian legislature, and the same was passed and received the assent of the assent on 25th of April 1872. And on receiving assent, it came on the stated book as the Indian Contract Act 1872, Act 9 of 1872. तो इस एक्ट को एनफोर्समेंट में कब लाया गया था? On the 1st September 1872 में. The act came into force on 1st September 1872. तो जब भी कोई लॉ एनैक्ट किया जाता है उसका कुछ पर्पस होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ऑब्जेक्ट क्या था? तो फर्स्ट इज टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज दैट टू एंश्योर दैट अगर कोई भी पर्सन कुछ वादा किया है तो उस वादा को पूरा करे, और अगर अपने वादा को पूरा नहीं करता है तो लीगल रेमेडीज अवेलेबल हो टू द एग्रीड पार्टी. जो अगर अपना वादा पूरा नहीं करता है तो एग्रीड पार्टी जो है उसके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हो अगेंस्ट द पार्टीज फेलिंग टू ऑनर हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. So the Indian Contract Act 1872, this act codified the legal principles that govern contract. That means principles relating to formation of contract, principles relating to performance of contract. ये जो principles था इसको codified किया गया था under this contract law. So originally the Indian Contract Act contains 266 sections divided into 6 groups. First, General Principles, Section 1 to Section 75, Provision relating to sale of goods, Section 76 to Section 123, Provisions relating to indemnity and guarantee, Section 124 to 147, Bailment and pledge, Section 148 to 181, Agency, Section 182 to 238, and the provision relating to partnership, Section 239 to 266. So in the year 1930, the provision relating to sale of goods were removed from the Indian Contract Act, and a new separate legislation was enacted by the legislature, that is the Sale of Goods Act 1930. Similarly, in the year 1932, the provisions relating to partnership were removed from the Indian Contract Act, and a separate legislation on the partnership was enacted, that is the Partnership Act of 1932. So let me discuss the meaning and nature of contract. According to Pollock, contract is every agreement enforceable by law is a contract.
the definition given under the Indian Contract Act 1872 is a resemblance to the definition given by Pollock. That is the section 2H of the Indian Contract Act define contract as an agreement enforceable by law is a contract. It basically says that to form a contract there must be an agreement, and the agreement should be enforceable by law. So agreement plus enforceable by law is contract. So to form a contract there must be an agreement. So let me discuss what is agreement. So the term agreement is defined under section 2E of the Indian Contract Act. The section 2E of the Indian Contract Act says that every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. That means promise plus consideration is agreement. So ये consideration क्या है? Consideration basically means something in return. अगर कोई भी promise या फिर set of promise के साथ अगर something in return होगा तो इसको हम agreement कह सकते हैं, और agreement enforceable by law is a contract. तो ये agreement के लिए promise हर एक agreement में promise होना ज़रूरी है. The term promise is defined under section 2B of the Indian Contract Act. As per section 2B of the Contract Act, it says that when the proposal is accepted, it basically says that a proposal when accepted it becomes promise. So proposal or offer plus its acceptance equal to promise. तो मैं पूरा जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसको मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज मैं अपना सेल फोन सेल करना चाहता हूँ, उसका प्राइस मैंने कहा कि 10,000 रुपीज़. तो मैंने ये आपको ऑफ़र किया, मैंने सेल करने के लिए अपना सेल फ़ोन जो कि प्राइस जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज़. तो आप ये मेरा ऑफ़र हो गया, मेरा प्रपोज़ल है, और आपने कहा कि आप 10,000 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार है मेरा सेल फ़ोन के लिए. तो ये क्या हो गया? आपका एक्सेप्टेंस हो गया. तो आपने मेरा प्रपोज़ल जो है उसको आपने एक्सेप्ट कर दिया. तो जब मेरा प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा. तो अब प्रॉमिस कब एग्रीमेंट होगा तो देखेंगे कि इस प्रॉमिस के साथ समथिंग इन रिटर्न है क्या. अगर समथिंग इन रिटर्न है तो उसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं. तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं जो सेल फ़ोन आपको दे रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे 10,000 रुपीज़ मिल रहा है. तो ये मेरे लिए क्या है? मेरा कंसिडरेशन है. और आपने जो 10,000 रुपीज़ पे किया उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको सेल फ़ोन मिल रहा है. तो आपके लिए समथिंग इन रिटर्न आपको सेल फ़ोन मिल रहा है, मेरे लिए 10,000 रुपीज़ मिल रहा है. तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न है, तो हम इसे एग्रीमेंट कह सकते हैं. अब एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है या फिर नहीं. तो अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं. अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते. तो एनफोर्सेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ इसका बेसिकली मीन होता है लीगल रेमेडीज अवेलेबल. मीन्स अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता हूँ, कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो एग्रीड पार्टी जो है वो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में फॉर रेमेडीज़. तो ये हो जाएगा एनफोर्सेबल. अगर उसके लिए अगर सूट फाइल कर सकते हैं तो अगर ब्रीच के लिए सूट फाइल कर सकते हैं तो उस एग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल बाय लॉ कह सकते हैं. और एनफोर्सेबल बाय लॉ जब हो जाएगा एग्रीमेंट तो उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. If remedies available for breach of terms and condition of agreement, then such agreement can be called as contract. तो एक एग्रीमेंट को कब हम कह सकते हैं कि वो एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दिया गया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, एनफोर्सेबल कह सकते हैं. तो सेक्शन 10 में बेसिकली जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो दिया गया है. तो ये वैलिड एसेंशियल जो है, एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी भी एग्रीमेंट में है तो उस एग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल बाय लॉ कह सकते हैं. अगर वो एसेंशियल्स मिसिंग है एग्रीमेंट में तो उसको हम एनफोर्सेबल नहीं कह सकते.
तो सेक्शन 10 में क्या कहता है कि फ्री कंसेंट, कुछ एसेंशियल जैसे कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इसके बाद पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल फोन जो सेल करने की बात कर रहा था, ये तो वॉलेंटरी है। आपने भी जो कंसेंट दिया था, मेरा जो प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया था वो भी वॉलेंटरी था। अगर मान लो कोई मेरा सर पे बंदूक रख के बोल रहा है अब मेरा सेल फोन सेल करने के लिए, तो मैं बंदूक के डर से अगर मैं सेल कर भी देता हूँ तो क्या ये एनफोर्सेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो कंसेंट है वो वॉलेंटरी नहीं है, फ्री नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एसेंशियल्स कहता है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जैसे कि आपको पता है माइनर्स के साथ कोई भी एग्रीमेंट अगर आपने किया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई अनसाउंड माइंड से अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी वॉइड रहेगा। तो प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्रीमेंट विद माइनर्स एंड अनसाउंड पर्सन, ये सेक्शन 11 और सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। तो ऐसे ही अगर जो कंसिडरेशन है एग्रीमेंट का, अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो वो भी एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन वी मे से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली एग्रीमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वही एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एग्रीमेंट वाइडर है क्योंकि एग्रीमेंट में भी एनफोर्सेबल बाय लॉ और मे नॉट बी। अगर कुछ इलीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर कोई लॉफुल तरीके से कर रहे हैं, अगर एग्रीमेंट सेक्शन 10 में दिया गया सब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहा है, तो उसी एग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल कह सकते हैं। तो ये क्या है, एग्रीमेंट ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो नैरोअर देन द एग्रीमेंट। नेक्स्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज ए सिविल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन जो होता है, जो जनरली द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइज इटसेल्फ टू द एनफोर्समेंट ऑफ वॉलंटरीली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस। तो नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशंस नॉट यूनिलैटरल रिलेशंस। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिलेशन होता है वो बायलैटरल रिलेशंस होता है, वो यूनिलैटरल नहीं है। सपोज मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मेरा सेल फोन सेल करने के लिए 10,000 रुपीज़ में, यहाँ पे पूरा एग्रीमेंट हो गया, और जब हम जो ये लॉफुल एग्रीमेंट है तो इसको हम आफ्टर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या किया, उसका प्राइस जो है उसको चेंज कर दिया। मैंने 10,000 रुपीज़ से 11,000 रुपीज़ कर दिया। तो क्या ये एनफोर्सेबल, क्या ये वैलिड रहेगा? तो क्या मैं 11,000 रुपीज़ प्राइस जो है वो एनफोर्स कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट में? तो आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बायलैटरल रिलेशन होता है जिसमें दोनों पार्टीज मिलके इस पर एग्री किया जाता है। तो मैं वन साइडेड जो है, वन साइडेड यूनिलैटरली मैं इसको अल्टर नहीं कर सकता किसी भी टर्म्स को। Here we end this video. I hope it is useful to understand the historical background and nature of nature of contract. Thank you.